السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نرید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی۔ منڈے 7 اکتوبر 1985 اکیلی لاورو نامی ایک اٹالین کروز شپ ایجپٹ کے شہر الیگزینڈرا پورٹ پر آ کے رکتی ہے۔ یہ اس کروز شپ کے سفر کا 5واں دن تھا جس نے اٹلی کے شہر جنوبا سے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ اس شپ میں ٹوٹل 748 پیسنجر اور 450 کروز ممبر موجود تھے۔ الیگزینڈریا پورٹ پر 651 پیسنجر شپ سے اتر کر بسز میں بیٹھ چکے تھے۔ یہ لوگ پیرامڈ سائٹ سینگ کے لیے کائرو جا رہے تھے۔ ان کی روانگی کے بعد شپ کیپٹن نے الیگزینڈریا پورٹ سے ایگزٹ کیا اور بچے ہوئے 97 پیسنجرز کے ساتھ کروز شپ کی ڈائریکشن 225 کلومیٹر ویسٹ میں ایجپٹ کے پورٹ سعید کی طرف کر دی۔ یہاں 14 گھنٹوں کے بعد کائرو جانے والے ٹورسٹ واپس سے کروز شپ کو جوائن کریں گے۔ یہاں تک جو کچھ بھی ہوا وہ پہلے سے پلان تھا، لیکن اس کے بعد چیزیں بگڑنا شروع ہوئی۔ 14 گھنٹوں کے بعد کائرو جانے والے ٹورسٹ رات کو ٹھیک 10:30 بجے پورٹ آف سعید پہنچ گئے، اس امید میں کہ وہ واپس سے اپنے ساتھیوں کو جوائن کریں گے، لیکن وہاں اکیلی لاورو کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پہلے ان کو بتایا گیا کہ سوئس کنال جانے والی ٹریفک کی وجہ سے کروز شپ کو دیر ہوئی ہے، لیکن جب 3 گھنٹوں کے انتظار کے باوجود بھی کروز شپ وہاں نہیں پہنچی تو تب ان کو سب سچ بتا دیا گیا۔ معلوم کیا پڑتا ہے کہ اکیلی لاورو کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ دوستو، بچے ہوئے 97 پیسنجرز کے بیچ میں 4 ہائی جیکرز بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ویپنز شاید کسی فیول ٹینک میں ڈال کر اسمگل کیے تھے، جس کی وجہ سے ان کے روم میں بہت زیادہ اسمیل تھی۔ الیگزینڈریا پورٹ سے نکلنے کے فوراً بعد وہ اپنے روم میں بیٹھ کر ہیئر ڈرائر کی مدد سے اپنے ہتھیاروں کو خشک کر رہے تھے۔ تب ہی ایک ویٹر فروٹ سرو کرتے ہوئے ان کے روم میں آ گیا جو کہ غلطی سے کھلا ہوا تھا۔ شاید ان کو الیگزینڈریا پورٹ کے قریب شپ ہائی جیک ہی نہیں کرنی تھی، لیکن کیونکہ اب بھانڈا پھوٹ چکا تھا تو وہ فوراً شپ کے ڈائننگ ہال میں گئے اور پیسنجر کو خوفزدہ کر کے ان کو ہاسٹیج بنانا شروع کر دیا۔ یہ ہائی جیکر کون تھے اور آخر ان کا مقصد کیا تھا، یہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ ایک ہاسٹیج نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ وہ نارویجن نیشن ہے۔ اس سے پہلے کہ ہائی جیکر شپ کے ریڈیو روم تک پہنچتے وہاں بیٹھے آپریٹرز نے ایک SOS کال براڈ کاسٹ کر دی، جس میں بتایا گیا کہ اکیلی لاورو شپ ہائی جیک ہو چکی ہے۔ یہ SOS کال سویڈن میں ایک ریڈیو اسٹیشن کو رسیو ہوئی۔ اس SOS میسج کے بارے میں ہائی جیکرز کو معلوم نہیں تھا اور انہوں نے ریڈیو روم پر قبضہ کر کے شپ کا سارا کمیونیکیشن سسٹم بند کر دیا۔ ایک ہائی جیکر نے لاؤڈ اسپیکر پر شپ کیپٹن کو فرنٹ بریج پہ آنے کو کہا۔ جب کیپٹن گرانڈو ڈی روزا پہنچے تو ان کا استقبال مشین گن کے چند فائر سے ہوا۔ ہائی جیکرز نے زور زور سے عربک لینگویج میں کچھ کہا اور پھر ٹوٹی پوٹی انگلش میں 500 کلومیٹر دور سیرین پورٹ سٹارٹر چلنے کو کہا۔ یہی پوائنٹ تھا کہ جب شپ کیپٹن نے اندازہ لگایا کہ یہ نارویجن نیشن نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے شپ کیپٹن کو کہا کہ وہ 450 کروز ممبر کو کہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی نارملی کرتے رہیں، لیکن کسی بھی ہاسٹیج کے آس پاس نظر نہیں آئیں۔ بندوق کی نوک کے نیچے کیپٹن کے پاس ہائی جیکرز کے آرڈر ماننے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اکیلی لاورو ایجپٹ کے پورٹ سعید کی بجائے اب سیریا کی طرف رواں دواں تھی۔ ڈرے سہمے ہاسٹیج اور شپ کے کروز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 7 تاریخ کا سورج ڈوبنے والا تھا اور ہائی جیکرز نے تمام ہاسٹیجز کو زمین پر ہی سونے کو کہا۔ دوسری طرف سویڈن کے ریڈیو اسٹیشن کو ملنے والے SOS میسیج نے پہلے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اٹیلین کرائسس مینجمنٹ ٹیم ایکٹیو ہو چکی تھی کیونکہ یہ انہی کی کروز شپ تھی، لیکن US نے پہلے اس کیس کو اتنا سیریس نہیں لیا، پر جب ان کو معلوم پڑا کہ کروز شپ میں امریکن نیشنل بھی ہیں تو US کرائسس مینجمنٹ بھی حرکت میں آ گئی۔ یہ ان کی نظر میں ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا اور US کی ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوسیشن کی کوئی پالیسی نہیں تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ اس ہائی جیکنگ میں ابھی تک 3 الگ الگ کنٹریز افیکٹ ہو چکی تھی۔ US کے پیسنجر تھے، اٹلی کی شپ تھی اور حادثہ ایجپٹ کی ٹیریٹری میں ہوا تھا۔ تو اب بحث اس بات پہ چل رہی تھی کہ کون سی کنٹری کو ایکشن لینا چاہیے۔ US کا خیال تھا کہ شپ اٹلی کا ہے تو اس وجہ سے پہلے اٹلی کو ایکشن لینا چاہیے، پر اٹالین گورنمنٹ اس ہائی جیکنگ کو طاقت کے زور پر نہیں بلکہ نیگوسیشن کے ذریعے حل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اٹلی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے میڈیٹرینین
यूनियन कंट्रीज में इसका नाम खराब हो, लेकिन यूएस इन हाईजैकर्स के साथ सख्ती से पेश आना चाहता था। लिहाजा यूएस ने मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे तमाम कंट्रीज को मना कर दिया कि कोई भी अकेली लाउरो को अपने डाक पर आने की इजाजत ना दे। अगली सुबह यानी 8 अक्टूबर को अकेली लाउरो सीरिया के करीब पहुंच चुकी थी। कैप्टन ने टार्टस पोर्ट पर आने की परमिशन मांगी, लेकिन क्योंकि यूएस पहले ही सबको अलर्ट कर चुका था, सीरियन अथॉरिटीज ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद हाईजैकर्स ने हॉस्टेज को उनकी नेशनैलिटी के हिसाब से अलग करना शुरू कर दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो अमेरिकन और ज्यूज को ढूंढ रहे थे। उन्होंने टोटल 20 पैसेंजर्स अलग किए, जिनमें एक ओल्ड एज कपल भी था। मैरिलन क्लेनहोफर और व्हील चेयर पर बैठे 69 ईयर के इनके हस्बैंड लियोन क्लिंगहोफर। हाईजैकर्स ने इन 20 लोगों को ऊपर के डेक पर शिफ्ट होने को कहा, लेकिन लियोन क्लिंगहोफर अपनी कंडीशन की वजह से ऊपर नहीं जा सकते थे। उनकी बीवी ने उनको अकेला छोड़ने पर शोर मचाया, लेकिन हाईजैकर्स ने बंदूक की जोर पर इनको चुप करवा दिया। लियोन क्लिंगहोफर इस बात पर काफी नाराज थे और लगातार हाईजैकर्स को बुरा भला कह रहे थे। काफी वक्त तक जब अकेली लाउरो को सीरिया में दाखिल होने की परमिशन नहीं मिलती, तब हाईजैकर्स ने आखिरकार अपनी डिमांड्स रेडियो के जरिए सीरिया अथॉरिटी के सामने रख दी। 4 में से जो इनका एक लीडर लग रहा था, उसने रेडियो पर बताया कि इनका ताल्लुक PLF यानी फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट से है और वो चाहते हैं कि इसराइल इनके 50 साथियों को रिहा कर दे। सारी चीजें अब खुलकर सामने आ चुकी थी। खुद को नॉर्वेजियन बताने वाले असल में फलस्तीनी थे। इस हाईजैकर का नाम यूसुफ मजीद मोल्की था और इसने आखिर में कहा कि अगर 3 बजे तक इनकी डिमांड्स पूरी ना की गई तो शिप में मौजूद ज्यूस को एक एक करके वो मारना शुरू कर देंगे। अब ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, जिसमें 3 और किरदार भी डायरेक्टली इफेक्ट हो गए, सीरिया, इसराइल और फलस्तीन। हाईजैकर्स की तरफ से दी गई डेडलाइन करीब आने लगी, लेकिन ना ही इनकी डिमांड पूरी हुई और ना ही कोई नेगोशिएशन टीम शिप तक पहुंच पाई। 3 बजे उन्होंने टार्टस पोर्ट को एक मैसेज भेजा, जिसमें इनका कहना था कि वो एक अमेरिकन पैसेंजर को मार चुके हैं और अब दूसरे की बारी है। पर टार्टस ऑफिशियल्स ने उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और कहा कि वो यहाँ से चले जाएं। हाईजैकर्स को जब लगा कि उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, तो उन्होंने कैप्टन को साइप्रस जाने को कहा। इस दौरान यूएस इंटेलिजेंस नेटवर्क में ये अफवाह फैल चुकी थी कि एक अमेरिकन पैसेंजर को मार दिया गया है, पर दूसरी तरफ इस बात की कोई कंफर्मेशन भी नहीं थी। अब क्योंकि हाईजैकर्स की शनाख्त हो चुकी थी, तो इटली ने फलस्तीनी प्रेसिडेंट यासिर अराफात से डायरेक्टली कांटेक्ट किया, जो कि फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी थे, और इनसे पूछा कि क्या PLO की इस हाईजैकिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। यासिर अराफात ने न सिर्फ इस हाईजैकिंग को डिसऑन किया, बल्कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक नेगोशिएशन टीम भी इजिप्ट रवाना कर दी। इस टीम में अबू अब्बास भी थे, जो कि PLF के लीडर थे। अबू अब्बास ने साइप्रस के रेडियो स्टेशन के जरिए हाईजैकर्स के साथ कांटेक्ट किया और इनको कहा कि वो फौरन इजिप्ट के पोर्ट सईद पर जाएं और तमाम पैसेंजर्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं। मोल्की, जो हाईजैकर्स का लीडर था, उसने अबू अब्बास की बात मानते हुए कैप्टन को इजिप्ट के पोर्ट सईद जाने को कहा। इजिप्ट पहुंचने पर अबू अब्बास ने कैप्टन से भी माफी मांगी और हाईजैकर्स के साथ अकेले में कुछ बातचीत भी की। असल में इटली और इजिप्ट इस मामले को बगैर हाथ मैले किए खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ये मामला फलस्तीन और इसराइल का था और कौन चाहेगा कि दूसरे की लड़ाई में अपने घर को गंदा करे। पर यूएस चाहता था कि ये टेररिस्ट हैं और इनके साथ किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं की जाए। यूएस के प्रोटेस्ट के बावजूद नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी थी। इटली और इजिप्ट चाहते थे कि हाईजैकर्स को PLO के हवाले कर दिया जाए और फिर वो खुद ही इनको शिप हाईजैक करने की सजा दे। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को कैप्टन देरोजा ने पब्लिकली एक रेडियो मैसेज करके सबको यकीन दिलाया कि शिप पर मौजूद तमाम पैसेंजर्स और क्रू बिल्कुल सेफ है। इस मैसेज के बाद इटली और इजिप्ट ने हाईजैकर्स को सेफ पैसे देने का फैसला किया। एक टग पोर्ट अकेली लाउरो तक लाई गई,
जिसमें 4 हाईजैकर्स बैठकर इजिप्ट के मेन लैंड पर आकर गायब हो गए। सबको लग रहा था कि नेगोशिएशन कामयाब हो गई है और हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड वापस ले ली है, पर असल में हाईजैकर्स ने कैप्टन दिरोजा से बंदूक की जोर पर यह मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाया था। जी हाँ, जब सीरियन ऑफिशियल्स शिप को परमिशन नहीं दे रहे थे तब ही उन्होंने असल में ही एक पैसेंजर को मार दिया था और वो पैसेंजर था व्हील चेयर पर बैठा लियोन। हाईजैकर्स ने क्लिंगहोफर की लाश को समंदर में ही फेंक दिया था। कई घंटों के बाद मिलने वाली इस खबर ने एक तहलका सा मचा दिया। हाईजैकर्स जिनको आजाद छोड़ दिया गया था वो असल में एक बहुत बड़ा जुर्म करके इजिप्ट की सरजमीन पर गायब हो चुके थे। अब सारी बंदूकों का रुख इजिप्ट की तरफ हो गया था। इटली ने इजिप्ट को कहा कि हाईजैकर्स उनके हवाले किए जाएं, लेकिन इजिप्ट भी इस मामले से दूर भाग रहा था। इजिप्शियन प्रेसिडेंट होसनी मुबारक ने कहा कि हाईजैकर्स इजिप्ट छोड़ गए हैं और इनको मालूम नहीं है कि अब वो कहाँ हैं, लेकिन असल में यूएस इंटेलिजेंस को खबर मिली कि इजिप्ट इनको एक प्लेन में बिठाकर तुनीशिया भेज रहा है, जहां इनको पीएलओ रिप्रेजेंटेटिव अपनी हिरासत में लेंगे। 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे इजिप्ट की अलमाजा एयरबेस से एक सिविलियन एयरक्राफ्ट रवाना होने वाला था, जिसमें चारों हाईजैकर्स को तुनीशिया के लिए रवाना किया जा रहा था। पर ना ही हाईजैकर्स को, ना ही इटली को और ना ही इजिप्ट को मालूम था कि यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इस जहाज को हवा में ही इंटरसेप्ट करने वाला है। 4 14 फाइटर्स, 2 KE-60 एयर टैंकर्स और 2 E-2C रडार प्लेन्स ने मेडिटेरेनियन के ऊपर ही पेट्रोलिंग करना शुरू कर दी। जैसे ही हाईजैकर्स के प्लेन ने टेक ऑफ किया, यूएस एयरफोर्स के फाइटर जेट अलर्ट हो गए और इसका पीछा करना शुरू कर दिया। 1.5 घंटा हवा में रहने के बाद F-14 एयरक्राफ्ट ने जहाज को घेर लिया और पायलट को कहा कि वो इटली में नेटो की एयरबेस सेगोनेला में लैंड करे। पायलट ने इजिप्शियन एयरबेस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन E-2C रडार प्लेन्स ने पहले ही रेडियो सिग्नल जैम कर रखे थे, लिहाजा पायलट का इजिप्शियन एयरबेस से कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। पायलट के पास और कोई चारा नहीं था और उसने सिसिलियन की तरफ जहाज मोड़ दिया। 11 अक्टूबर रात के 12:10 पर जहाज सेगोनेला एयरबेस सिसिली पर लैंड कर गया। इस ऑपरेशन के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। इटली को इस ऑपरेशन के बारे में तब मालूम पड़ा जब जहाज सेगोनेला एयरबेस पर लैंड करने वाला था। अब क्योंकि ये जहाज इटली में लैंड हुआ था, शिप भी इटली की हाईजैक हुई थी और मर्डर भी इटालियन शिप पर ही हुआ था। इसी वजह से पहला हक इटली का था कि वो इनकी कस्टडी ले, लेकिन यूएस चाहता था कि इनकी कस्टडी वो लेंगे। लैंड होने वाले जहाज को 80 यूएस कमांडो ने घेर लिया और 80 कमांडो को 300 इटालियन कमांडो ने। कई घंटों तक इटालियन और यूएस डिप्लोमेसी की मीटिंग जारी रही और फिर आखिरकार सुबह को वाशिंगटन से एक कॉल आई और उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को पीछे हटने का हुक्म दिया। इटली और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट इस शर्त पर हुआ था कि इटली इन हाईजैकर्स को सजा दिलवाएगा। इटालियन ट्रूपर्स ने इस जहाज में इन 4 हाईजैकर समेत एक और अहम शख्सियत को भी पाया और वो था PLF का लीडर और यासिर अराफात का भेजा गया अबू अब्बास। अबू अब्बास की जहाज में मौजूदगी की वजह से ऐसा माना जाता है कि इसी ने ये सारी हाईजैकिंग प्लान की थी, पर यासिर अराफात को इसका इल्म था कि नहीं, इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। हाईजैकिंग के साथ कनेक्शन में सबूतों की कमी की वजह से इटली ने अबू अब्बास को छोड़ दिया, जबकि चारों हाईजैकर्स पर केस चलाकर इनको सजा दी गई। जिस हाईजैकर ने क्लिंगहोफर का कत्ल किया था वो था अल मुल्की, जिसको 30 साल की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी 3 हाईजैकर्स को 15 से 25 साल की सजा दी गई। बाद में मालूम पड़ा कि ये शिप को हाईजैक करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि इस क्रूज शिप को इस्तेमाल करके इसराइल की पोर्ट अशूद पे अटैक करना चाहते थे और ये कदम हाल ही में इसराइल की बॉम्बिंग की वजह से लिया गया था। लियान क्लिंगहोफर की बॉडी 5 दिनों के बाद 13 अक्टूबर को सीरिया के कोस्ट से बरामद हुई, जिसको ऑटोप्सी के बाद होम कंट्री भेज दिया गया। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोग भरपूर तरीके से लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।